اور اہم اور بڑی خبر یہ ہے کہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سپریم کورٹ میں سماعت جاری ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 9 رکنی لارجر بینچ سماعت کر رہا ہے۔ 9 رکنی لارجر بینچ میں نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ شامل ہیں، جسٹس سردار طارق، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس یاحییٰ آفریدی، جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس عائشہ ملک بینچ کا حصہ ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ اٹارنی جنرل روسٹم پر آئیں، میں نے کچھ کہنا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ عدالت کو اختیار سماعت آئین کا آرٹیکل 175(2) دیتا ہے۔ میں اپنی قومی زبان اردو میں بات کروں گا۔ تعجب ہوا کہ کل رات 8 بجے کاز لسٹ میں میرا نام آیا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر کوئی بات نہیں کروں گا، انہوں نے یہ بھی کہا۔ اور سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ابھی بنا نہیں تھا کہ 13 اپریل کو سپریم کورٹ کے 9 رکنی بینچ نے حکم امتناع دیا۔ سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی سماعت جولائی تک ملتوی کی۔ سپریم کورٹ رولز پڑھیں کیا کہتے ہیں۔ آئین سپریم کورٹ کا سماعت کا اختیار دیتا ہے۔ جج کا حلف کہتا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایک قانون ہے، میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں بینچ کا حصہ نہیں، کچھ نہیں کہوں گا۔ اس سے پہلے ایک از خود نوٹس میرے بینچ میں سماعت کے لیے مقرر ہوا۔ میں نے اپنے فیصلے میں کہا کہ آئین کے آرٹیکل 184(3) میں رولز بنائے جائیں۔ اس کے بعد تعجب اور دکھ اور صدمہ ہوا کہ 31 مارچ کو عشرت علی صاحب نے سرکلر جاری کیا۔ عشرت علی صاحب نے 31 مارچ کے سرکلر میں کہا کہ سپریم کورٹ کے 15 مارچ کے حکم کو نظر انداز کریں، یہ وقت تھی سپریم کورٹ کے فیصلے کی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ پھر سپریم کورٹ نے 6 ممبر بینچ بنا کر سرکلر کی توثیق کی اور میرا فیصلہ واپس لیا۔ میرے دوست یقیناً مجھ سے قابل ہیں، لیکن میں اپنے ایمان پر فیصلہ کروں گا۔ اس 6 ممبر بینچ میں اگر نظر ثانی تھی تو مرکزی کیس کا کوئی جج شامل کیوں نہیں تھا؟ یہ بھی کہا کہ میں نے 6 ممبر بینچ پر نوٹ تحریر کیا جسے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کے بعد ہٹا دیا گیا۔ چیف جسٹس نے 16 مئی کو پوچھا کہ کیا میں چیمبر ورک کرنا چاہتا ہوں یا نہیں۔ بتاتا ہوں کہ میں نے چیمبر ورک کو ترجیح کیوں دی۔ ایک قانون بنا دیا گیا، بینچز کی تشکیل سے متعلق کسی پر انگلی نہیں اٹھا رہا، لیکن میرے پاس آپشن تھا کہ حلف کی پاسداری کروں یا عدالتی حکم پر بینچ میں بیٹھوں۔ میری دانست میں قانون کو مسترد کیا جا سکتا ہے، معطل نہیں کیا جا سکتا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ مجھ سے جب چیمبر ورک بارے دریافت کیا گیا تو میں نے 5 صفحات پر مشتمل نوٹ لکھا۔ چہمگوئیوں سے بچنے کے لیے میں اس بات کا قائل ہوں کہ ساری بات کھلی عدالت میں ہونی چاہیے۔ اب تو نوٹ بھی ویب سائٹ سے ہٹائے جاتے ہیں، اس لیے اپنا جواب یہی پڑھ رہا ہوں۔ میں نے چیف جسٹس کو لکھا، نوٹ اپنے تمام کولیگز کو بھی بھیجا۔ میں نے نوٹ میں کہا کہ میرے ساتھیوں نے قانون معطل کر کے مجھے عجیب کشمکش میں ڈال دیا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت نے میری سربراہی میں ایک انکوائری کمیشن تشکیل دیا۔ انکوائری کمیشن کو 19 مئی کو 5 رکنی بینچ نے کام کرنے سے روک دیا۔ میں نے انکوائری کمیشن کو نوٹس ہونے پر جواب بھی جمع کرایا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے جو درخواست رات گئے موصول ہوئی اس میں عمران خان نیازی کی بھی درخواست تھی۔ آج کاز لسٹ میں آخر میں آنے والی درخواست سب سے پہلے مقرر کر دی گئی۔ میں اس بینچ کو بینچ تصور نہیں کرتا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا، اور یہ بھی کہا کہ مجھے جو درخواست رات گئے موصول ہوئی اس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی بھی درخواست تھی۔ آج کاز لسٹ میں آخر میں آنے والی درخواست سب سے پہلے مقرر کر دی گئی۔ میں کیس سننے سے معذرت نہیں کر رہا، پہلے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا فیصلہ کیا جائے۔ میرا موقف یہ ہے کہ جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو ٹھکانے نہ لگایا جائے تب تک میں کسی بینچ میں نہیں بیٹھ سکتا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے یہ ریمارکس، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے جو درخواست رات گئے موصول ہوئی اس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی بھی درخواست تھی۔ آج کاز لسٹ میں آخر میں آنے والی درخواست سب سے پہلے مقرر کر دی گئی۔ میں اس بینچ کو بینچ تصور نہیں کرتا، میں کیس سننے سے معذرت نہیں کر رہا۔ اب تک کی اہم ڈیولپمنٹ، اہم خبر، فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سپریم کورٹ میں سماعت جاری ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 9 رکنی لارجر بینچ سماعت کر رہا ہے۔ 9 رکنی لارجر بینچ میں نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ شامل ہیں، جسٹس سردار طارق، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس یاحییٰ آفریدی، جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس عائشہ ملک بینچ کا حصہ ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ میں اس بینچ کو بینچ تصور نہیں کرتا، پہلے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا فیصلہ کیا جائے۔ میرا موقف یہ ہے کہ جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر کو ٹھکانے نہ لگایا جائے تب تک میں کسی بینچ میں نہیں بیٹھ سکتا۔ انہوں نے کہا کہ میں اور جسٹس سردار طارق مسعود اس کشمکش میں تھے کہ کیس سننے سے معذرت کریں یا نہیں۔ سب سے معذرت چاہتا ہوں، میں بینچ سے اٹھ رہا ہوں، کیس سننے سے معذرت نہیں کر رہا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ جب تک سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا فیصلہ نہ کرے اس عدالت کو نہیں مانتا۔
اور جسٹس سردار طارق مسعود کی جانب سے کہا گیا ہے کہ میں بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے اتفاق کرتا ہوں. اس وقت ہم 9 ججز ہیں اور ہم فیصلہ کر دیتے ہیں اس کیس میں, تو کل کو اپیل پر فیصلہ کون کرے گا؟ انتہائی اہم ریمارکس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ میں بینچ سے اٹھ رہا ہوں, کیس سننے سے معذرت نہیں کر رہا. جب تک سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا فیصلہ نہ ہو میں اس عدالت کو نہیں مانتا. یہ کہا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے, اور یہ بھی کہا کہ سب سے معذرت چاہتا ہوں. میں اور جسٹس سردار طارق مسعود اس کشمکش میں تھے کہ کیس سننے سے معذرت کریں یا نہیں. جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا ہے کہ میں بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے اتفاق کرتا ہوں. اس وقت ہم 9 ججز ہیں اور ہم فیصلہ کر دیتے ہیں اس کیس میں, تو کل کو اپیل پر فیصلہ کون کرے گا, یہ سوال سامنے رکھا ہے جسٹس سردار طارق مسعود نے, اور کہا ہے کہ وہ بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے اتفاق کرتے ہیں. جبکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ میں اور جسٹس سردار طارق مسعود اس کشمکش میں تھے کہ کیس سننے سے معذرت کریں یا نہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ میں اس بینچ کو بینچ تصور نہیں کرتا اور میں کیس سننے سے معذرت نہیں کر رہا. جسٹس طارق مسعود نے یہ بھی کہا ہے کہ جب تک ان قوانین کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک ہم بینچ میں نہیں بیٹھ سکتے. وکیل لطیف کھوسا نے یہ سوال رکھا ہے کہ اگر آپ کیس نہیں سنیں گے تو 25 کروڑ عوام کہاں جائیں گے, جس پر جسٹس سردار طارق مسعود نے یہ سوال کیا کہ 25 کروڑ عوام کا خیال پہلے کیوں نہیں آیا. اعتزاز احسن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ کیس سن لیجئے, میری استدعا ہے قاضی صاحب سے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جواب دیا ہے کہ میں آپ کی بہت قدر کرتا ہوں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بار میں اپنے حلف کے خلاف ورزی کر دوں. جسٹس اعتزاز احسن نے کہا ہے کہ گھر کے تحفظ کے لیے کیس سن لیجئے, آپ سپریم کورٹ میں مل بیٹھ کر فیصلہ کرنے کے پابند ہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ یہ گھر نہیں, یہ سپریم کورٹ ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں, جو ڈیولپمنٹ اب تک سامنے آ رہی ہے اس سے آگاہ کر رہے ہیں. 2 معزز سینئر ججز نے اعتراض کیا ہے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ کہا ہے کہ ممکن ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر حکم امتناع ختم ہو جائے. اس عدالت کی روایت کے مطابق 2 سینئر ججز کے اعتراض کے بعد تکرار نہ کرے. بینچ کمرہ عدالت سے اٹھ کر چلا گیا ہے. کیا صورتحال بنی ہے؟ نمائندہ جیو نیوز مریم نواز ہمارے ساتھ, ان سے جانیں گے. مریم, کیا صورتحال بنی ہے؟ جی, آج سپریم کورٹ میں جو سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہے اس کے خلاف جب درخواست پر سماعت شروع ہوئی تو بینچ کے آتے ہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اٹارنی جنرل کو روسٹم پر طلب کیا, اور انہوں نے کہا کہ وہ کچھ باتیں ہیں جو یہاں کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس کیس سے پہلے ہی کرنا چاہتے ہیں. اس دوران جو درخواست گزار کے وکیل سے سردار لطیف کھوسا, انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ وہ اپنی خوشی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, جس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ آپ اپنی خوشی کا اظہار بعد میں کیجیے گا یا بینچ عدالت سے باہر جا کے کیجیے گا, پہلے میں یہاں بات کرنا چاہتا ہوں. اور پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے تمام تر اعتراض جو ہیں وہ آج عدالت میں, کھلی عدالت میں جو ہے وہ سامنے رکھے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سب سے پہلے یہ کہا کہ ان کو بہت تعجب ہوا جب رات کو بہت دیر سے یعنی 8 بجے کے قریب ان کو جو ہے یہ کاز لسٹ ملی جس میں ان کو اس بینچ کا ممبر بنایا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ ان کو کیس کی تیاری کا جو وقت ہے وہ بہت مختصر دیا گیا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے فیصلے پر کوئی بات نہیں کریں گے, لیکن وہ اس سے متعلق اپنے جو تحفظات ہیں ان کو سامنے رکھیں گے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ابھی بنا نہیں تھا کہ 13 اپریل کو سپریم کورٹ کے 9 رکنی بینچ نے اس پہ حکم امتناع دے دیا. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی سماعت اس کے بعد جولائی تک ملتوی کر دی. انہوں نے کہا کہ ہمیں پہلے سپریم کورٹ کے قوانین اور ضابطے پڑھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آئین سپریم کورٹ کو تمام تر اختیارات دیتا ہے, جج کا حلف یہ کہتا ہے کہ وہ آئین و قانون کے مطابق فیصلے کرے. انہوں نے کہا کہ ان کے مطابق جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ہے وہ بھی ایک بل ہے اور اس بل کے اوپر یا تو عدالت اس کو مسترد کر سکتی تھی یا پھر اس کو جو ہے وہ سسٹین کر سکتی تھی. عدالت کے پاس کسی قانون کو معطل کرنے کا کوئی بھی جو ہے وہ اختیار نہیں ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ انہوں نے جو یہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے اس کے آنے سے پہلے 184(3) کے متعلق اپنا ایک فیصلہ دیا تھا جس کو ایک رجسٹرار نے اپنے سرکولر کے ذریعے جو ہے وہ نظر انداز کرنے کا کہہ دیا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ان کو جو رجسٹرار کا 31 مارچ کا سرکولر تھا ان کے فیصلے سے متعلق اس کو دیکھ کے بہت زیادہ دکھ بھی ہوا اور تعجب بھی ہوا. پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بھی کہا کہ ان کے اوپر متعدد اعتراضات کیے جا رہے ہیں کہ وہ پچھلے 2 ماہ سے بینچ پہ نہیں بیٹھ رہے. تو اس پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ جب چیف جسٹس نے ان سے یہ دریافت
किया कि आप बेंच का हिस्सा क्यों नहीं है और आप बेंच में क्यों नहीं बैठ रहे, तो उन्होंने कहा कि मैंने जवाबन 5 सफ़हात पर मुश्तमिल जो है वो एक नोट चीफ जस्टिस को तहरीर किया और वो अपने साथी जजेस को भी भेजा, जिसमें मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो है वो एक कानून बन चुका है और इस कानून पर अमल दरामद करना मेरे हल्फ की पाबंदी है। उन्होंने कहा कि या तो उनका ये ख्याल था कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर 3-4 समातों के अंदर फैसला हो जाएगा, क्योंकि कवानीन के ऊपर इतनी जल्दी फैसला होता है, लेकिन अदालत ने इस केस को जुलाई तक मुलतवी कर दिया। जस्टिस काजी फाइज़ ने यह भी कहा है कि जो उनके जब तक कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला नहीं हो जाता वो इस अदालत को अदालत नहीं मानते। उन्होंने कहा कि वो इस केस को सुनने से माजरत नहीं कर रहे, लेकिन वो इस बेंच के अंदर नहीं बैठ सकते क्योंकि जो मौजूदा बेंच है उसको वो जो है वो अदालत नहीं मानते। उसके बाद जस्टिस काजी फाइज़ ने ये भी कहा कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जो कि जस्टिस काजी फाइज़ के बाद सीनियर तरीन जज है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा कि वो दोनों बहुत ज्यादा ताजुब का शिकार थे, कश्मकश का शिकार थे कि क्या वो इस बेंच के अंदर बैठे या फिर इस बेंच को सुनने से पहले ही माजरत कर लें। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि जस्टिस सरदार तारिक का मौक़िफ़ ये था कि हर बंदे को अपना मौक़िफ़ सामने रख के पेश करना चाहिए, इसलिए हम अदालत में आए। और फिर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने भी ये कहा कि वो भी इस केस को नहीं सुन सकते। लतीफ खोसा, जो कि एतजाज एहसन के वकील हैं इस दरख्वास्त के अंदर, उन्होंने ये कहा कि अदालत जो है वो इस केस को सुन ले, क्योंकि 25 करोड़ अवाम जो है उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी अदालत की जिम्मेदारी है, जिस पर जैसे सरदार तारिक मसूद ने कहा कि आइन आज तक बना है, जो कुछ आइन में दर्ज है उसके मुताबिक चलना है। इससे पहले भी मुख्तलिफ ट्रायल्स जो है वो सिविलियंस के होते रहे, तब किसी को भी कवानीन के और हकूक के मुताबिक जो है वो कोई बात याद नहीं आई। जैसे सरदार तारिक ने कहा कि हमने बैठ के फैसला करना है कि सिविलियंस का इस तरीके से ट्रायल हो सकता है या नहीं, लेकिन उससे पहले तो जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला नहीं हो जाता हम इस बेंच में नहीं बैठ सकते। उसके बाद आखिर में जब एतजाज एहसन ने जो है वो ये सदा की जस्टिस काजी फाइज़ को मुखातिब करके कि आप इस केस के अंदर बैठे, उन्होंने कहा कि आपका ये घर है जिसका आप तहफ़्फ़ुज़ करें, तो जस्टिस काजी फाइज़ ने कहा कि माजरत के साथ ये कोई घर नहीं है बल्कि ये अदालत है और अदालत का एक डेकोरम होता है, एक तरीक़ेकार होता है जिसके मुताबिक अदालत को चलना है। जस्टिस काजी फाइज़ ने बारहा ये कहा कि वो खुली अदालत के अंदर अपने एतराज़ात इसलिए आज रख रहे हैं क्योंकि मुख्तलिफ जयमगोइयाँ शुरू हो जाती हैं और फिर गलत खबरें भी चलती हैं, और उनका जो नोट है वो भी एक दफा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से उतार लिया गया था, इसलिए वो चाहते हैं कि खुली अदालत में बात की जाए ताकि किसी को कोई भ्रम ना रहे। उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले के ऊपर एतराज नहीं कर रहे, बल्कि जो अपने जो तरीकेकार अपनाया गया है बेंच बनाने का और इससे पहले फैसले करने का, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। इसके बाद आखिर में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये कहा कि क्योंकि 2 सीनियर मुअज़्ज़िज़ जजेस ने जो है वो ये केस सुनने से केस पर बेंच पर एतराज कर दिया है, इसलिए हम अदालती डेकोरम का ख्याल रखते हुए जो है वो अभी मजीद तकरार में नहीं पड़ सकते। और फिर उसके बाद बेंच जो है वो उठ के चला गया है और अब ये अदालत का आइंदा का लाए अमल क्या होगा, ये अदालत की जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि इन दरख्वास्तों को जो उनके सामने आई हैं इनके मुतालिक वो अभी कुछ और लाए अमल इख्तियार करेंगे। मरियम, आपसे मजीद तफसील भी लेते रहेंगे। इंतहाई अहम खबर है, बड़ी डेवलपमेंट है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी थी। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा था। 9 रुकनी लार्जर बेंच में नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईशा शामिल थे, जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच का हिस्सा थे, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक बेंच का हिस्सा थे। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस समाअत के दौरान बात की। उन्होंने कहा कि आज कॉज लिस्ट में आखिर में आने वाली दरख्वास्त सबसे पहले मुकर्रर कर दी गई। मैं इस बेंच को बेंच तस्वुर नहीं करता, जिसके बाद बेंच जो है वो कमरा अदालत से उठकर चला गया। इंतहाई अहम रिमार्क्स जो अभी सामने आए हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा है कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर फैसला नहीं होता तब तक हर बेंच गैर कानूनी है। ये अहम रिमार्क्स जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए हैं। कहा है कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर फैसला नहीं होता तब तक हर बेंच गैर कानूनी है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है, जिसमें अब से कुछ देर पहले जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह कहा है कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर फैसला नहीं होता तब तक हर बेंच गैर कानूनी है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अभी बना नहीं था कि 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तना दिया। सुप्रीम कोर्ट रूल्स पढ़ें, क्या कहते हैं। जज का हलफ कहता है कि आइन और कानून के मुताबिक फैसला करूंगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक कानून है। मैं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में बेंच का हिस्सा नहीं, कुछ नहीं कहूंगा। उन्होंने कहा कि
इस फैसले में कहा कि आइन के आर्टिकल 184(3) में रूल्स बनाया जाए। इसके बाद ताज्जुब, दुख और सदमा हुआ कि 31 मार्च को इशरत अली साहब ने सर्कुलर जारी किया और इशरत अली साहब ने 31 मार्च के सर्कुलर में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 15 मार्च के हुक्म को नजरअंदाज करें। यह वक्त थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। अभी उन्होंने कुछ देर पहले कहा है कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर फैसला नहीं होता तब तक हर बेंच गैर कानूनी है। जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने भी ये कहा है कि मैं भी जस्टिस काजी फायज ईसा से इत्तफाक करता हूं और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा है कि 2 मुअज़्ज़िज़ सीनियर जजेस ने एतराज किया है। ये मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर हुक्म इम्तना खत्म हो जाए। इस अदालत की रिवायत के मुताबिक 2 सीनियर जजेस के एतराज के बाद तकरार न करें। चीफ जस्टिस ने कहा है कि आपके केस का कोई हल और करते हैं। जिसके बाद ये बेंच जो है वो कमरा अदालत से उठकर चला गया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में ये समाअत जारी थी। जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से कहा गया कि आज कॉज लिस्ट में आखिर में आने वाली दरख्वास्त सबसे पहले मुकर्रर कर दी गई। मैं इस बेंच को बेंच तस्वुर नहीं करता। जिसके बाद ये बेंच कमरा अदालत से उठकर चला गया है। मरियम नवाज नुमाइंदा ज्यूरी हमारे साथ है। मरियम, अब दीगर जो प्रोसीडिंग्स हैं इस केस की वो कब होंगी? बेंच तो उठकर चला गया है कमरा अदालत से। जी, ये बेंच पर क्योंकि एतराज कर दिया है 2 सीनियर जज साहिबान ने, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक नामजद चीफ जस्टिस हैं और दूसरे सीनियर तरीन जज हैं। और अब इसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बेंच के उठने से पहले ये कहा है कि जब अब जो ये जो दरख्वास्तें हैं इनके ऊपर आगे क्या करना है, इनको किस तरह से लेकर चलना है, इस पर चीफ जस्टिस ने कहा है कि वो कोई फैसला करेंगे। अभी जजेस जो है वो उठ के चले गए, लेकिन इससे पहले जो 2 सीनियर तरीन जजेस हैं उनको बोलने का मौका दिया गया। उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर कोई फैसला नहीं हो जाता वो किसी भी बेंच को नहीं मानते, कोई भी बेंच तश्कील नहीं दिया जा सकता। जस्टिस काजी फायज ईसा ने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर फैसला होने तक कोई भी बेंच कानूनी नहीं हो सकता। और उन्होंने ये भी कहा कि जो ये मौजूदा दरख्वास्तें हैं इनको लगाने का तरीकाकार भी अजीब था। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि सबसे पहले जो फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का मामला था इसके ऊपर इमरान खान ने जो है वो अपनी दरख्वास्त दायर की थी, लेकिन उसके बाद उनकी दरख्वास्त पर एतराज लगाया गया। उन्होंने एतराज दूर करके दोबारा दरख्वास्त दायर की, फिर एतजाज एहसन की दरख्वास्त आई, उसके बाद शहरियों की दरख्वास्त आई और आखिर में जो साबिक चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के जवाद ख्वाजा उनकी दरख्वास्त आई। लेकिन जब रात में जस्टिस काजी फायज ईसा कहते हैं कि उनके सामने कॉज लिस्ट आई तो उस कॉज लिस्ट में जो केस मुकर्रर करने का तरीकेकार था वो तकरीबन उल्ट था। जवाद ख्वाजा की दरख्वास्त पहले मुकर्रर की गई, इमरान खान की दरख्वास्त को आखिर में मुकर्रर किया गया। तो जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर एतराज नहीं कर रहे, लेकिन जो तरीकेकार अपनाया जा रहा है उस पर वो मोतरज है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला नहीं हो जाता वो इस अदालत को नहीं मानते हैं। उसके बाद जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो कि एक और सीनियर जज है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी जस्टिस काजी फायज ईसा के मौके से इत्तफाक किया और उन्होंने कहा कि ये फैसला करना कि इस सिविलियंस का फौजी ट्रायल हो सकता है, फौजी अदालतों के अंदर ट्रायल हो सकता है या नहीं, ये बात का मामला है, इस पर हम फैसला करेंगे, लेकिन जो तरीकेकार अपनाया जा रहा है वो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर फैसला होने तक वो भी किसी बेंच में नहीं बैठ सकते। सरदार तारिक मसूद ने यह वाज़ेह किया कि वो दीगर बेंचेस में जरूर बैठ रहे हैं, लेकिन इस तरह के बेंचेस बनाना जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में वाज़ेह है कि 2 सीनियर जजेस से चीफ जस्टिस ने जो है वो मुशावरत करनी है, तो जब तक वो मामला क्लियर नहीं हो जाता वो बेंचेस में नहीं बैठेंगे। ये भी वाज़ेह यहाँ पे करता हूँ कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बाद जो 2 सीनियर तरीन जजेस हैं वो जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ही हैं और दोनों जजेस ने ये कहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर फैसला नहीं होता वो बेंच के अंदर नहीं बैठेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के अंदर जो एक शिक है वो ये है कि बेंचेस बनाने का जो इख्तियार है चीफ जस्टिस पाकिस्तान का उसको एक कमेटी के साथ डिवाइड कर दिया गया है कि अब जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है उनको किसी भी तरह के बेंचेस को बनाने के लिए जो अपने 2 सीनियर तरीन मेंबरान है उनसे मुशावरत करनी होगी और जो भी मेजॉरिटी मेंबरान यानी अगर 2 मेंबरान ये कहते हैं चाहे उसमें 2 मेंबरान में चीफ जस्टिस शामिल ना हो कि बेंच कौन सा तश्कील दिया जाएगा, तो बेंच जो है वो उन जजेस की मेजॉरिटी जो है वो उसके फैसले के ऊपर बेस करेगा। इसलिए दोनों जजेस ने आज की समाअत में वाज़ेह अपना मौक़िफ़ सामने रखा है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या तरीकेकार अपनाती है ये चीफ जस्टिस की सवाबदीद है, क्योंकि इस वक्त के फैसले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है वो मुअत्तल है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो है वो उठ के जाने से पहले यानी बेंच के उठने से पहले ये भी कहा कि शायद मेरे साथी जजेस को ये मालूम नहीं है कि पिछली 2 समाअतों के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर
प्रोसीजर बिल समाअत के लिए मुकर्रर किया गया, तो अटॉर्नी जनरल ने अपना जो ये मौजूदा कानून है इसको बेहतर करने के लिए वक्त मांगा है। ये अदालत ने इसको जुलाई तक मुलतवी अपने तौर पर नहीं किया, बल्कि अटॉर्नी जनरल की सदा के ऊपर किया। लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि अदालत का डेकोरम यही है कि जब सीनियर जजेस किसी बेंच पर एतराज कर देते हैं तो मजीद उस केस को नहीं सुना जाता, इसलिए हम इसको मलहूज़ खातिर रखेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह भी वाज़ेह किया कि जब उन्होंने ये बेंच बनाया था, यानी फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक ये आज का 9 रुकनी बेंच, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी हल्फ की जो कसम खा रखी है उसकी पासदारी उन्होंने की और तभी उन्होंने ये बेंच बनाया। फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये कहा कि हम यहाँ पर मखलूक खुदा के फैसले करने के लिए ही बैठे हुए हैं और वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि उनके 2 सीनियर जजेस बहुत मुअज़्ज़ज़ हैं उनकी नज़र में, और जितने भी जजेस सुप्रीम कोर्ट के हैं वो तमाम उनकी नज़र में बहुत मुअज़्ज़ज़ है। इसलिए अदालत का डेकोरम यही रहा है कि अगर जजेस बेंच पर एतराज कर देते हैं तो केस को मजीद नहीं सुना चाहता, तो अदालत उसके बाद जो वकला जो कि अदालत से इस्तदा कर रहे थे कि इस केस को सुन लीजिए, तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये कहा कि इस केस में मजीद तकरार ना करें और हम इस केस को फिलहाल नहीं सुन रहे। और फिर अदालत जो बेंच है वो चीफ जस्टिस की सरबराही में कमरा अदालत से उठकर चला गया। उसके बाद बेंच उठकर चला गया। आप साथ ही रहेगा मरियम नवाज, आपसे मजीद भी तफसील लेनी है। साथ ही साथ ये भी बताते चलें कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से मुतालिक जो कि 21 अप्रैल 2023 के मुताबिक इस बिल को कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर कराए जाने के बाद दस्तखत के लिए सदर को भेजा गया था और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत सो मोटो नोटिस लेने का इख्तियार आला अदलिया के 3 सीनियर तरीन जजेस के पास होगा। ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में था। बिल के तहत सुप्रीम कोर्ट के सामने हर मामले और अपील को कमेटी का तश्कील करदा बेंच सुने और निपटाएगा, जबकि कमेटी में चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस होंगे और कमेटी का फैसला अक्सरियत राय से होगा। ये है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल। और जो समाअत का अहवाल है हमसे मरियम नवाज शेयर कर रही हैं, बता रही हैं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। उसके बाद बेंच उठकर चला गया। जो अहम तरीन चीजें इसमें सामने आई हैं वो ये है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि मैं और जस्टिस सरदार तारिक मसूद इस कश्मकश में थे कि केस सुनने से माजरत करें या नहीं। सबसे माजरत चाहता हूं, मैं बेंच से उठ रहा हूं, केस सुनने से माजरत नहीं कर रहा। जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला ना हो मैं इस अदालत को नहीं मानता। एक और अहम उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर फैसला नहीं होता तब तक हर बेंच गैर कानूनी है। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को ही बुनियाद बनाकर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आज एतराज किया कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर फैसला नहीं होता तब तक हर बेंच गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की कुछ आपको डिटेल दे दे। इस बिल के तहत आज खुद नोटिस लेने और सुप्रीम कोर्ट के बेंच की तश्कील का इख्तियार एक 3 रुकनी कमेटी को दिया गया था। कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस को शामिल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून साजी के खिलाफ दरख्वास्तों पर कानून को मुअत्तल कर दिया था और इस कानून के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आज कहा है कि आज जो कॉज लिस्ट में आखिर में आने वाली दरख्वास्त थी वो सबसे पहले मुकर्रर की गई। मैं इस बेंच को बेंच तस्वुर नहीं करता, मैं केस सुनने से माजरत नहीं कर रहा। पहले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला किया जाए। मेरा मौकिफ यह है कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को ठिकाने ना लगाया जाए तब तक किसी बेंच में मैं नहीं बैठ सकता। जिसके बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि 2 सीनियर मुअज़्ज़ज़ सीनियर जजेस ने एतराज किया है, मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर हुक्म इम्तना खत्म हो जाए। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि इस अदालत की रिवायत के मुताबिक 2 सीनियर जजेस के एतराज के बाद तकरार ना करें, आपके केस का कोई और हल करते हैं। जिसके बाद बेंच कमरा अदालत से उठकर चला गया। समाअत करने वाला बेंच उठकर चला गया और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह कहा कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर फैसला नहीं होता तब तक हर बेंच गैर कानूनी है। सबसे माजरत चाहता हूं, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि मैं बेंच से उठ रहा हूं, केस सुनने से माजरत नहीं कर रहा। मैं भी जस्टिस काजी फाइज ईसा से इत्तफाक करता हूं, यह कहा जस्टिस सरदार तारिक ने। और लतीफ खोसा वकील जो है उन्होंने सवाल रखा कि आप केस नहीं सुनेंगे तो अवाम कहां जाएंगे, जिस पर अब सवाल यह रखा जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कि अवाम का ख्याल पहले क्यों नहीं आया। एतजाज एहसन ने कहा कि यह केस सुन लीजिए, मेरी इस्तदा है काजी साहब से। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जवाब दिया कि मैं आपकी बहुत कदर करता हूं। साथ ही साथ आपको यह भी बताएं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि यह नहीं हो सकता कि एक बार मैं अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर दूं। एतजाज एहसन ने कहा कि घर के तहफ्फुज के लिए केस सुन लीजिए, जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जवाब दिया कि यह घर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह रिमार्क्स दिए कि 2 मुअज़्ज़ज़ सीनियर जजेस ने एतराज किया है, मुमकिन है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर हुक्म इम्तना खत्म हो जाए। ये भी चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए और कहा कि 2 सीनियर जजेस के एतराज के बाद तकरार ना करें। याद रहे 21 अप्रैल 2023 को
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कौमी असेंबली और सेनेट से मंजूर कराए जाने के बाद दस्तखत के लिए सदर को भेजा गया था। इस बिल के मुताबिक यानी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत सो मोटो नोटिस लेने का इख्तियार अब आला अदलिया के 3 सीनियर तरीन जजेस के पास होगा और बिल के तहत सुप्रीम कोर्ट के सामने हर मामले और अपील को कमेटी का तश्कील करदा बेंच सुने और निपटाएगा, जबकि कमेटी में चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस होंगे और कमेटी का फैसला अक्सरियत राय से होगा। ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की डिटेल्स और जो समात फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में हुई, उसके मुताबिक जो रिमार्क्स सामने आए उससे मुतालिक हम आपको आगाह कर रहे हैं। इस दौरान ये भी कहा जस्टिस काजी फाइजीसा ने कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स पढ़ें, क्या कहते हैं। आइन सुप्रीम कोर्ट को समात का इख्तियार देता है। जज का हलफ कहता है कि आइन और कानून के मुताबिक फैसला करूंगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक कानून है। मैं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में बेंच का हिस्सा नहीं, कुछ नहीं कहूंगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो क्या कहता है, इसकी तफसील भी आपको बता दें। इस बिल के तहत अज खुद नोटिस लेने और सुप्रीम कोर्ट के बेंच की तश्कील का इख्तियार एक 3 रुकनी कमेटी को दिया गया था और इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस को शामिल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून साजी के खिलाफ दरख्वास्तों पर कानून को मुअत्तल कर दिया था और इस कानून के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है।